आज मैं उस शहर में मौजूद हूँ जिसको अमरूदों का शहर भी कहा जाता है, जहाँ पर मैं आपको अमरूदों के बाग में लेकर जाऊंगी और वहाँ पे आपको बताऊंगी कि अमरूद किस तरह तैयार होते हैं और किस तरह हम उसे मजे से खाते हैं। 8 एकड़ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਕੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਂ ਦੇ दिन च तकरीबन 2-3 दफ़ा यानी 2-3 पैलियाँ तोड़ ली दी ने। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान कवल आफ्ताब। नाजरीन, आज मैं उस शहर में मौजूद हूँ जिसको अमरूदों का शहर भी कहा जाता है। जी तो नाजरीन, मैं शर्तपुर में मौजूद हूँ जहाँ पर मैं आपको अमरूदों के बाग में लेकर जाऊँगी और वहाँ पे आपको बताऊँगी कि अमरूद किस तरह तैयार होते हैं और किस तरह हम उसे मज़े से खाते हैं। तो चलो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। अच्छा सर, मैंने दसो कि ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਗ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਟੋਟਲ? 8 ਏਕੜ ਜੀ ਬਾਗ ਹੈ। 8 ਏਕੜ। 8 ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 8 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਬਾਗ ਬਣਾਓਗੇ? 8 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਕੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਗ 8 ਏਕੜ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ 8 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੀ। ਪੱਕਣ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਜੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੀ ਅਮਰੂਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੈਸੇ ਲਾਏ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਖਤ ਹੈਗਾ, ਬੂਟਾ ਹੈਗਾ ਅਮਰੂਦ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ 'ਚ? ਟਾਈਮ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 4 ਸਾਲ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰੱਖੇ ਨੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੂਦ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਲੇ ਕੋਈ 10 15 20 ਜੀ ਲੈ ਆਈਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ 6-7 ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਮ। 6-7? ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਰਫ 6-7 ਲੋਕ? ਹਾਲੀ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਕੰਮ ਹੁਣ ਹਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੀਜ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਲੰਮਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ? ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਮਰੂਦ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੂਦ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਮਰੂਦ ਫਿੱਕਾ ਹੈ? ਉਹ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦਸੰਬਰ, ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੂਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾ ਕਮ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ? ਗਰਮੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲੌਜੀਕ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਅਮਰੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅਮਰੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ? ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੂਦ ਤੋੜ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੋੜਿਓ, ਤੇ ਪੱਤੇ ਕਿਉਂ ਤੋੜਦੇ ਪਿਓ ਨਾ? पत्ते आप ही इसलिए तोड़ ले, फिर पेटियां दे विच ना लगांदे आ, फिर पेटियां अमरूद खराब नहीं होता। ਅਮਰੂਦ ਖਰਾਬ? हाँ जी हाँ जी। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕ ਅਮਰੂਦ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦਿਨ? दिन च तकरीबन 2-3 दफ़ा यानी 2-3 पैलियाँ तोड़ ली दी ने। तकरीबन 60-70 पेटी इस तक सारी तादाद हो जाती है। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੇ? नहीं, एक बंदा नहीं, सारे बंदे सारी लेबर रल के। ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ? ਕਿੰਨੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 3-4-5 ਬੰਦੇ ਆ। 4 ਬੰਦੇ, 5 ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਇੱਕ ਢੋਣ ਵਾਲਾ, 2 ਸੀ, 3 ਬੀਬੀਆਂ, 2 ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਚ ਨਾ 3-4। ਅੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਅਮਰੂਦ ਕਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਫਿੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਏ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਹੋਏ ਉਹ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌੜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੌੜਾ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਅਮਰੂਦ ਵੀ ਬੜੇ ਪਸੰਦ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ शुक्रिया। यहाँ पर मैंने काफ़ी अमरूद देखे हैं जो कच्चे भी हैं, तो सर आप मुझे इसके बारे में कुछ बताएं। ये मैम कच्चे इसलिए हमने तोड़े हुए हैं, ये भेजते हैं हम कराची। ये इस वजह से ये कराची पहुँचते हैं 2 दिन के बाद, तो ये कराची 2 दिन के बाद जब पहुँचेंगे उधर जाते जाते फिर ये पक जाएंगे, ये खाने के लायक हो जाएंगे। अच्छा, मतलब 2 दिन में ये पक जाएंगे? जी जी, 2 दिन में ये पक जाते हैं। और अगर लाहौर या कहीं पास भेजना हो तो वहाँ पे पक्के अमरूद भी? लाहौर हम नहीं भेजते, लाहौर हम इतना वो कम सस्ते बिकते हैं ना, लाहौर किसी इतने परचेज नहीं होते वो। अच्छा, जहाँ पे महंगे बिकते हैं वहाँ पे? जी जी, वो लाहौर वाले सस्ते काम करते हैं। यही बात है,
तो और उसके बाद ये जब पक जाते हैं ना, पके होते हैं, वो हम शावर में पेटी लगा के बेचते हैं। इतने महंगाई की बात तो कर दिया, मुझे बताएं कि आप कराची में एक पेटी कितने की दे रहे हैं? कराची में पेटी नहीं होती, कराची में वो कार्टन होता है, वो कार्टन ही 10 दो, कार्टन कितने? वो तकरीबन 600-700 का बिकता है 6-7? जी, 600-700। तो अगर वही कार्टन हम गरीब लाहौर वालों को दिया जाए तो वो कितने का? इधर 400-450 का भी नहीं लेते, 300 इधर इतना ज़्यादा नहीं लेते हैं। अच्छा आमिर साहब, मैंने सारा बाग का विजिट किया, लेकिन ये छोटे छोटे पौधे बिल्कुल एक ही अपनी जगह बना के बैठे हुए हैं, ऐसा क्यों? ये मैम हमने इसलिए लगाए हुए हैं, अगर कोई हमारे दरख्तों में कोई चीज़, किसी पौधे की कमी आ जाए, उधर भी लगा देते हैं, इसलिए हमने ये मतलब ये अमरूद के पौधे? जी, हम ये भी अमरूद के पौधे ही हैं। ये छोटे छोटे अमरूदों में से हम अपने बाग में पता होता है कौन सा जो पौधा है इसका फल अच्छा है, उधर से उसके सारे पहले अमरूद कटे करते हैं, उनमें से बीज निकाल के फिर एक जगह ये दबा देते हैं, तो फिर ये छोटे छोटे पनीरी इसको कहते हैं, शॉपर बनाए हुए, उसमें मिट्टी डाली है, उसमें ये आर्टिफिशियल तौर पे उसमें लगा देते हैं। उसके बाद फिर हम इतना पौधा होने में कितना इसको वक्त लगता है, बीज से यहाँ तक होने में? हाँ, पौधा तकरीबन साल लग जाता है। 1 साल लग जाता है इतना? साल जी। ये जो प्लास्टिक में इन्होंने आपने मिट्टी डाली हुई है, तो इसको इस तरह रखा हुआ आपने, तो कहा था पौधे लगा दिए? इसमें इसलिए रखा हुआ है, बाद में लगाने में आसानी आ जाए। एक पौधा आप कितने का बेचते हैं? ये एक पौधा तकरीबन 10 से 15 रुपए का ही है, 30-35 का है 30-35 रुपए का बेच दे? जी। 30 अड्डा सस्ता जी, 30-35 पड़ती है। उसके बाद हमने तो इतनी ज़्यादा नहीं की, उसके बाद जब ये अपने खेत में लगाएंगे उसके बाद ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर बड़ा होगा। ओह सही है, मतलब 30-35 का एक पौधा ये बेचते हैं इसमें? जी जी जी। और इस पे कुल खर्चा कितना आ जाता है? लाइक आप जब बीज लगाते हैं और बड़ा होता है, पानी शानी ये वो, हमारा तो खर्चा क्या ना, हमने तो अपने खेत में से बीज लगाने हैं। मतलब ये जो 30-40 रुपए है ये बोनस है आपको? बोनस या बस ये शापर वगैरह और जिससे ये भरवाने हैं उसको मजदूरी वगैरह देनी है। कितना टाइम होता है एक पौधे का जो बड़ा हो जाता है, कितना टाइम होता है कि वो कितनी देर एक फ्रूट या कोई फल दे सकता है? बड़ा होने के बाद तकरीबन 5 से 6 साल तक तकरीबन देता रहता है, उसके बाद ख़त्म होता रहता है, आस्ता आस्ता सूख जाता है, पत्ते झड़ जाते हैं उसके। मतलब कोई 7 साल तक आप वो पौधा दोबारा से खुद ही उतार के नया लगा देते हैं वहाँ? अब अभी तो आपके सामने सर सब्ज़ है, उसके बाद ये खुश्क होने के बाद ये पत्ते इसके झड़ जाएंगे, उसके बाद दोबारा फिर ये आप इसको उतार देंगे और लकड़ी इसकी, अच्छा इसकी लकड़ी का क्या करेंगे, वो भी बेचते हैं या खुद यूटिलाइज करते हैं? लकड़ी बेच देते हैं। ज़्यादा इतनी ज़्यादा हमने क्या करनी होती है। अभी हम आपको बताएंगे कि एक अमरूद की पेटी किस तरह तैयार होती है और उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अमरूद की पेटी तैयार होने वाली है? हाँ जी, होने वाली है। अच्छा, मुझे आपने बताना है कि एक अमरूद की पेटी में कितना टाइम लगता है और उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है। लाइक मैं देख रही हूँ अखबार भी है और इसको क्या कहते हैं मुझे ये भी नहीं मालूम, तो ये भी बताएं। इसको कतर कहते हैं। ठीक, कतर? हाँ जी, कतर। तो तकरीबन 5 मिनट तो लग ही जाते हैं एक पेटी तैयार करने के। 5 मिनट में एक पेटी? और कितने अमरूद होते हैं एक पेटी में? एक पेटी में तकरीबन ऐसे ही अमरूद हों तो तकरीबन 80 अमरूद भी पड़ जाते हैं। और वो किलो के हिसाब से अगर बताएं तो? हिसाब से बताएं 8 किलो 9 किलो अमरूद पड़। 8 किलो 9 किलो? मतलब आपने कोई वो तराजू नहीं रखा हुआ जिसमें आप इसको तोल सकें? हाँ जी, हाँ जी, तराजू तो नहीं है हमारे पास। जब हाथ ही तराजू में तो पता चल जाता है कि जी 8 किलो जा रहे हैं कि 7 किलो। ਹੁਣ एक मिसाल ये पेटी है ना, इसमें 8 किलो अमरूद पड़ते हैं, ये उन काटने लग रहा है, इसमें 1516 किलो अमरूद पड़ जाते हैं। अच्छा, मतलब कार्टन में फ़र्क है और पेटी में फ़र्क है। ये कराची जाना है, ये पेशावर जाना है। इसमें से आप देख रहे हैं कि जो पक्के पक्के अमरूद हैं वो यहाँ पे रख रहे हैं आप, और जो कच्चे अमरूद है जैसे कि उन्होंने कहा है कि कराची जाते जाते वो पक जाएंगे तो उसको वहाँ पे रख। हाँ जी, वो पक जाएंगे कराची जाते जाते। ठीक है, वो आगे से जहाँ भी भेजें, दुबई भेजें या यूरोपीय मुल्क में भेजें, जहाँ भी भेजें। अच्छा, मुझे ये बताएंगे जो कतर है ये इतनी ज़्यादा क्यों इस्तेमाल करते हैं और ये इसको इस्तेमाल ही क्यों करते हैं? इसमें इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं कि जो है ना, ये अमरूद है ना, इसकी सजावट हो जाती है। जी तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आज मैं अमरूद के बाग में मौजूद थी जहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बताई जो आप जानना चाहते थे, और साथ ही साथ ये बताया कि अमरूद जब पक जाते हैं और जब कच्चे होते हैं तो उनको तैयार करके कहाँ भेजा जाता है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए उर्दू पॉइंट के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए अपनी मेज़बान कवल आफ्ताब को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।